आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी ठीक है, ठीक है अभी। मे भी थोड़ा इंटरनेट फीबल, इशू होगा। नहीं नहीं, थोड़ा फीबल आ रहा था, आई गेस माइक का प्रॉब्लम था, माइक दूर है आपके पास। So Shiv, should we start or should we wait for more people? It's I already guess so nice. people will keep on joining. We may start the introductory phase. Yeah, we can Uh, start it, right? yeah, please. Okay, so I'm gonna start the session. So first of all, I want to introduce myself. Hello guys, I am Mansi Kumari from Civil Part 2. I, along with my co-host Shiv from Civil Part 2, will be moderators for this today's session. So we had already our guest with us. So let me introduce him. So we are proud to have Mr. Ayush Kumar Singh, who is a fifth year IDD student at Civil Engineering. He appeared in the GATE 2021 and has made it to the top 100 with an AIR of 75. And he will be an upcoming executive trainee at Tata Projects. About his interns, I would like to know you people that he did his intern at NITI Aayog and Bechtel Corporation, and had a very vibrant college life, taking part and volunteering in many extracurricular activities. So welcome Bhaiya on behalf of the entire student counseling service. So now I want to inform you people that we had floated a form and collected a few questions from the audience prior to the session. So now I would like to my co-host to carry on with the questions. Handing over to Shiv. Shiv, you can carry forward. Okay, so Ayush Bhaiya is there. So, like, first question from our side is that you have attended a part of your college in offline mode. That's not with us, unfortunately. So, would you like to share your journey and how your time you had been at the IIT BHU. Could you please? Uh, Hello everyone. So as you said about academics and all you mentioned in the questionnaire, I also received the questions. So basically I joined IIT back in 2017. So I have been in the college for 3 years, like in the offline mode. And in these 3 years, I learned a lot of things. I will basically start with the very first year of my college life. So, like every one of us, I also joined IIT after 2 years of hectic preparation. So, in the very first year, I was not I was in no mood to study. I was just open to exploring new things, and I joined club like cricket club, dramatics club, and teams of various sports festival events like Spardha and Sil Power Departmental Fest, which unfortunately have not been conducted from past 3 years, thanks to COVID. And apart from that, I have been involved in conducting inspire sessions in schools. So in a nutshell, I was involved in a lot of activities. You can say a lot of extracurricular activities, and which was definitely like of my interest. Those activities I used to do, which were interesting to me. And while doing all this, I never sidelined my academics completely, and used to put just optimum effort so that I can carry on with a decent CPI. I can have a decent CPI. Yeah, that's all I guess. Or if you have some specific question about a specific college life person, I can add on to it. But informally, I have a lot to tell, but maybe this is a formal session, so I would conclude here only. Okay, Okay, so thank you Bhaiya. more of your experience would be coming out in the Yeah, in the subsequent discussions. Yeah. yeah. So Mansi, please, second question from your side. Yeah. So, Bhaiya, my next question from you is, most of us who are interested in having a career in the core stream come across many doubts like, do we need to appear for GATE in order to go for higher studies in our stream? See, And how there. important is the GATE score for taking admissions in the foreign universities? See, for higher studies, when it comes to India, like
GATE is equivalent to IIT when it comes to post graduation for Indian context. But if you are looking to go abroad for higher studies, then I don't think GATE is a good idea to give GATE examination, because there are only few universities. I guess there are 4 to 5 universities only which offer seats based on your GATE score. One very good university is NTU Singapore, which selects student based on GATE score, which consider GATE score. But when it comes to when you talk about going to foreign, then GRE score is what is of prime importance. So GATE does not play a significant role there. But if you want to do higher studies in India only, then yes, GATE is definitely uh, should be your like examination to crack. Okay, thank you so much, Priya. So, yes, Okay, so the other question that is very important is that what is the ideal duration of preparing for the GATE exam, and when should इको आ रहा है किसी का शायद, तो second part of the question is कि मतलब कभी शुरू करना चाहिए, when should one start preparing for it, at the ideal year like second year, third year or the fourth year? Okay, so I guess most of you are comfortable in Hindi. I can speak in Hindi also, I guess. Yes, yeah, yeah. it is your Yeah, liberty. if anyone is having problem with the language, he or she can raise hand. I will definitely translate it to in English also. So for the preparation, when it comes to GATE preparation, अगर आपका बेस क्लियर है, अगर आप जो कॉलेज स्टडीज है उसको ठीक से किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल if you have studied subjects like RCC, SOM to a great extent, to a deeper extent in the college time in your course curriculum only, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा गेट अगर मैं कहूँ मोटा मोटी तो 8 months या 8 months से सफिशियंट टाइम आपका पूरा सिलेबस कवर हो सकता है, गिवन डेट आपके पास आइडिया है थोड़ा बहुत कि चीजें क्या है कैसे हैं. अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो मे बी 12 months यानी 1 year, बाकी 8 month आई थिंक इज द आइडियल टाइम कि आप गेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं विद इन 8 month. तो मेरा जब मैं स्टार्ट किया था पिछले साल की प्रिपरेशन, तो मैं स्टार्ट किया था अप्रैल 2020 में. तो उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि उसके बाद से मेरा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया था. एक दो सब्जेक्ट था वो बहुत कम वेटेज का होता है, वो मेरा नहीं था कवर, बाकी लगभग मेरा पूरा सिलेबस कवर था. Okay, so we got the answer pretty much. और भैया एक सब क्वेश्चन और है, that is the coaching necessary for cracking GATE? कोचिंग, देखो कोचिंग क्या करता है बेसिकली, तुम सभी लोग जेई की कोचिंग किए हैं तो सबको आइडिया है कि कोचिंग क्या करता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देता है. वो मतलब तुम्हारे पार्ट से वो थोड़ी बहुत मेहनत टीचर अपनी तरफ से कर रहा है. वो तुमको बता रहा है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या चीजें लीव करनी चाहिए. तो कोचिंग यहाँ पे तो मैंडेटरी हो जाती है अगर तुम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हो. तो अगर तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाह रहे हो, तुम्हें पता करना पड़ेगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है. बुक है, मान लो मॉड्यूल आती है, आईएएस मास्टर की ले लो या मेडीजी की ले लो, तो उनकी मॉड्यूल ही इतना ज्यादा कंटेंट रहता है उसमें कि तुम पूरा कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो कोचिंग इंस्टीट्यूट तुमको ये गाइड कर देते हैं कि तुमको कितना पढ़ना है, किन पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है. और बाकी वेटेज का सीन ये रहता है कि तुम कोई भी प्रीवियस ईयर उठाओगे तो उसमें वेटेज मिल जाएगा तुमको, या कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लोगे तो वेटेज मिल जाएगा. लेकिन जो कंटेंट है, किस कंटेंट पे कितना फोकस करना है, कौन सा कंटेंट प्राइम इंपॉर्टेंस का है, ये तुम्हें कोचिंग वाले बताते हैं. तो तुम्हारा काम कोचिंग के कारण आसान हो जाता है. बाकी क्रैक तो तुम सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो गेट, नो डाउट नहीं कर सकते ऐसा पॉसिबल नहीं है. तुम कर सकते हो बिना कोचिंग के भी, लेकिन कोचिंग तुम्हारा काम आसान कर देगी. ओके भैया, लकीली मेरे पास भी मॉड्यूल्स हैं आईएएस मास्टर के, बट खोले नहीं मैंने बहुत ज्यादा. jokes apart, Mansi please, next question. yeah. So, Bhaiya, next question is, like as far as the civil department is concerned, which Mansi, PSU sorry, and companies. hello. Mansi, your voice is not clear, I guess. अभी आ रही है? नहीं एकदम नहीं आ रही. नहीं, ब्रेक कर रही है बीच में. ब्रेक कर रहा है आवाज. Okay, let me change my headphone. Shiv, you take the next question. I just change it. Yes, sir. Okay, sure.
So the question is ki, as far as civil department are taken into account, which PSUs or companies accept the candidates through GATE for their streams of engineering specially? पीएसयूज देखो, जितनी भी पीएसयूज हैं, देखो सीन ऐसा रहता है कि मे भी कई लोग अवेयर नहीं होंगे जितने लोग मीट में हैं। गेट जो है, गेट सिर्फ हायर स्टडीज में एडमिशन के लिए एक एग्जामिनेशन है। पीएसयूज क्या होता है, इसको एक क्राइटेरिया बना लेती है अपने यहाँ एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने का। वो दूसरा एग्जामिनेशन लेंगे, उसका वो कॉस्ट बियर करेंगे। उससे अच्छा वो ये समझते हैं कि हम गेट के थ्रू ही कैंडिडेट्स को हायर करेंगे। तो मतलब गेट की जो कंडक्टिंग अथॉरिटी रहती है वो पीएसयूज में रिक्रूटमेंट नहीं करती हैं। पीएसयूज की अपनी अलग बॉडी रहती है जो अपना अलग नोटिफिकेशन निकालती हैं। उसका कोई भी डेट फिक्स नहीं रहता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीएसयू इटसेल्फ, और कितनी सीटें आएंगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, दैट इज ऑल, मतलब वो अथॉरिटी रहती है सिर्फ पीएसयू की। तो जो पीएसयू बेसिकली, जितनी भी पीएसयू हैं, हर पीएसयू के पास कुछ ना कुछ सीटें रहती हैं सिविल के लिए। तो ज्यादातर पीएसयू जो लोग प्रेफर करते हैं। हेलो, हाँ भैया, आ रही आवाज। ये किसी कोई म्यूट कर ले, किसी की आवाज आ रही है बीच में। गाइस म्यूट कर लो सभी। मानसी आप ही का बैकग्राउंड आ रहा है एक्चुअली। अभी ठीक है। हाँ, तो जो पीएसयूज रहती हैं जो सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती हैं, उनमें से एक एनएचएआई है जो सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। उसके बाद फिर आईयूसीएल है, ओएनजीसी है, और इसके अलावा एचपीसीएल भी लेती है, सीआईएल भी लेती है। लेकिन जैसा कि मैं बोला, ये पूरा डिसीजन होता है पीएसयूज का। जैसे लास्ट ईयर क्या सीन था कि एचपीसीएल जो थी वो अपना खुद का एक एग्जाम कंडक्ट कराई थी जिसके थ्रू वो कैंडिडेट्स को हायर करेगी। तो इस बार वो एचपीसीएल गेट से नहीं ली है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ पीएसयूज हायर करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। और जो ऐसा मतलब चला आ रहा है जो प्रथा, उस हिसाब से तो ओएनजीसी हर बार हायर करती है, एनएचएआई भी लगभग हर बार हायर करती है, आईओसीएल भी हर बार हायर करती है। तो अगर 2 डिजिट रैंक है तो कोई ना कोई पीएसयूज होगी। अगर महारत्न नहीं तो मुनिरत्न होगी, ऐसी पीएसयूज जरूर होंगी। जो तुम्हारा माइक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आई गेस मानसी। तो पीएसयूज तो हैं ढेर सारी। जो जितनी भी पीएसयूज हैं जो भी अपना नोटिस निकालती हैं, ज्यादातर ऐसी रहती हैं जिसमें सिविल की वैकेंसी रहती है, एक दो को छोड़ के। Okay, Via. Okay. So next question is what is the importance of CPI in GATE examination and in the future endeavors of the life? Like कितना पढ़ोगे और कितना CPI लाओगे तो मतलब it is beneficial and benevolent for us. देखो, जब गेट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो गेट एग्जामिनेशन एग्जाम के थ्रू ही आपका कैलिबर चेक कर रहा है। तो उसमें सीपीआई बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले करता है। लेकिन कभी तुम पीएसयूज में एडमिशन लेने जाओ या किसी भी आईआईटीज में, मान लो हायर स्टडीज के लिए जाना है, आईआईटी बॉम्बे में तुम्हें एमटेक करना है, या नीति बॉम्बे में जाना है, तुमको पीजीडीएमपी का कोर्स करने के लिए जाना है, तो उस केस में इंटरव्यू के थ्रू इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू का कुछ ना कुछ वेटेज होता है। तो अगर तुम्हारी सीपीआई अच्छी है, अच्छी इन द सेंस 8.5 अबव है, तो वो मैं कहूंगा कि डिसेंट सीपीआई है। अगर उतना सीपीआई रहता है तो नो डाउट मतलब आपका इंटरव्यू भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे कम सीपीआई रहता है और कोर में है, कम सीपीआई है, तो वो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों कम सीपीआई है। और जहां तक बात है सीपीआई होने की, तो सीपीआई मेरे हिसाब से मैंडेटरी नहीं होता है, पर एक एडेड एडवांटेज होता है। अगर आपका सीपीआई अच्छा है तो आप एडवांटेज साइड रहेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपका सीपीआई अच्छा नहीं है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी रहेगी। बस ये है कि आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो और अच्छा होना चाहिए। Okay, okay. Mansi, please. Okay, I'll take up the next question. So भैया next question है, what projects did you take up while you were in college and how did it help you in the journey? प्रोजेक्ट देखो, दो प्रोजेक्ट्स तो मैंडेटरी रहते हैं। एक प्रोजेक्ट रहता है एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट का, एक प्रोजेक्ट रहता है यूजी प्रोजेक्ट। तो मैं जब भी प्रोजेक्ट किया तो मैं ये सोच के किया कि मुझे कुछ नया सीखना है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। मैं उसको एज अ बर्डन नहीं लिया था प्रोजेक्ट को। तो मैं यूजली प्रेफर करता था कि मैं
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट करूं, बिकॉज अपने यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की फैकल्टी थी वो बहुत ही अच्छी फैकल्टी थी, चाहे वो मुदगल सर हो, चाहे वो साबू सर हो, अभी शायद साबू सर चले गए हैं, और चाहे वो ब्रिन सर हो या अंकित गुप्ता सर हो, ये सब अच्छी फैकल्टीज थे, ये हेल्प करते थे चीज़ों को सीखने के लिए। तो मेरा प्रोजेक्ट था, पहला एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन में था, वेरिन आई एक्सप्लोर्ड अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड ट्रैकर। तो मतलब उसका यूज करके और फोटोग्रामेट्री का यूज करके बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट था। और उसके बाद मैं फ्यूचर में वेस्ट फिलर्स पे काम किया था, रोड पेमेंट पे। उसके बाद इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए ड्यूरिंग कोविड टाइम जब चीजें ऑनलाइन हो गई, तो फॉर शिफ्टिंग माय प्रोजेक्ट टू ऑनलाइन मोड सो दैट आई कैन डू इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ माय होम, आई स्विच टू लाइफ साइकिल असेसमेंट ऑफ दीज वेस्ट फिलर, वेयर इन माय जॉब वाज और माय एम वाज टू सी डैट कि कितना वेस्ट फिलर इफेक्ट, अगर हम लोग वेस्ट फिलर यूज कर रहे हैं तो ये कितना बेनिफिशियल है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कितना कम इम्पैक्ट डाल रहा है इन्वायरमेंट पे एज कंपेयर टू अवर कन्वेंशनल वेस्ट फिलर्स। और इसके अलावा मैं सेमी फ्लेक्सिबल पेमेंट्स पे भी काम किया हूँ, जहाँ पे सेमी फ्लेक्सिबल पेमेंट्स आर बेसिकली द मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। सो इसमें एक ग्राउट मटेरियल यूज होता है, तो उसका जो प्रपोर्शनिंग होता है वो बेसिकली मैं देखा कि मतलब क्या कितना सैंड कितना फ्लाई एश वगैरह डालें तो इसकी प्रपोर्शनिंग सबसे अच्छी होगी कि हम लोग का फ्लो वैल्यू भी अच्छा है और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहे। तो ये कुछ प्रोजेक्ट थे मोटे मोटे जो मैंने किए थे अपने कॉलेज लाइफ में। Okay, भैया. So the next question is कि most of us are confused about taking open electives and HULM courses. What are their importances and kindly give us your suggestions in this regard. देखो HULM और OE अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। कुछ मैनेजमेंट के कोर्स हैं जो अगर लेना चाहे आदमी तो उसको अच्छे से कर सकता है, बाकी तो ओपन इलेक्टिव और HULM मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते। अगर तुम कोई HULM का कोर्स किए हो, जैसे जितनी भी PSUs रहती हैं उनकी जो जॉब है वो मैनेजेरियल जॉब रहती है, वो तुम डेप्यूटी मैनेजर के पोस्ट पे जाते हो या फिर मतलब वो मैनेजरियल काइंड ऑफ जॉब रहती है। तो अगर कुछ मैनेजमेंट का कोर्स किया हो तो वो हेल्प कर सकता है, बाकी तो OE-HULM का ऐसा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। और मेरे हिसाब से मेरा जो मानना रहता था, मेरे हिसाब से OE-HULM ऐसे सब्जेक्ट लेने चाहिए जिसमें थोड़ा मेहनत कम रहे, और बाकी अगर इंटरेस्ट है किसी चीज में, जैसे अगर तुम्हारा मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो कुछ कोर्सेज जैसे क्वांटिटेटिव मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग है, ये ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जो अच्छे कोर्सेज हैं, इसमें पढ़ाने वाले भी अच्छे हैं, अगर इनको करना चाहो तो कर सकते हो। और बाकी OE-HULM ऐसा चूज करो जिसमें प्रोफेसर देख लो कि लाइट रहे, अगर प्रोफेसर लाइट है वो मार्क्स अच्छे दे देता है और कोर्स का कंटेंट लाइट है तो उस हिसाब से OE-HULM को अपना चूज किया करो। बाकी OE-HULM अगर तुम सॉफ्टवेयर प्रोफाइल में अप्लाई करना चाह रहे हो अपने प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, तब तुम CSE का कोई OE ले लिए तो वो बेनिफिशियल रहेगा। बाकी गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि कोई OE या HULM तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। Okay, भैया. So the point for all the audience was कि मतलब मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं वो काफी बेनिफिशियल रहेंगे for your हाँ, फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट के कोर्सेज रहेंगे, लेकिन वो भी कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लाइटली निकालना चाह रहे हैं सेमेस्टर तो जरूरी नहीं है कि वो कोर्सेज भी लें, ऐसे कोर्सेज लें जो इजी हो, और बाकी कंपलसरी रहता है लैंग्वेज मैनेजमेंट में तो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। Okay. मानसी. Yeah. So भैया नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि काफी लोगों को होती है दिक्कत, वो वाली क्वेश्चन आ गई that how did the college course curriculum help you in preparation for the GATE, and how did you manage college studies along with the GATE preparation? तो जैसे मैं बताया, मैं 2018 में अपने 4th ईयर में बेसिकली मैं IAS मास्टर का मटेरियल मंगवा लिया था, और उसके बाद फिर जब कोर्सेज चल रहे थे मेरे, तो पैरेलल में मैं IAS मास्टर के मटेरियल से भी देखता रहता था कि क्या चीजें हैं जो गेट के सिलेबस से कॉमन है, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहता है कि जो चीजें कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं लगभग चीजें कॉमन रहती हैं गेट के सिलेबस से भी। तो अगर आप कॉलेज में अच्छे से जो भी करिकुलम है, अगर प्रोफेसर अच्छा है, प्रोफेसर अच्छे से पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, और उसके साथ साथ गेट की भी जो मॉड्यूल है, जो मटेरियल है, उसको देख सकते हैं। इन दोनों को साथ साथ में लेकर के करेंगे तो
कॉलेज में CPI भी अच्छा बना रहेगा, क्योंकि मोर और लेस चीजें वही रहती है और पैरेलली गेट का भी प्रिपरेशन होता जाएगा। लेकिन ये हो नहीं पाता कई लोगों से। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जितना भी जो भी अगर कोई प्रोफेसर है वो अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहा है पढ़ाने का, तो उसको अप्रिशिएट करो और थोड़ा बहुत उसके साथ साथ पैरेलल में पढ़ते रहो, तो चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी। और लास्ट में जब 3rd-4th ईयर के लास्ट में रहेंगी तो अचानक से बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। जब चीजें स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत क्लियर हुई रहेंगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी लास्ट में। तो मेरी तो यही स्ट्रेटेजी थी कि थोड़ा बहुत जो भी कोर्स में चल रहा है वो थोड़ा बहुत मैं साथ में पैरेलली पढ़ लेता था, और उसके बाद फिर आगे जाकर के मॉड्यूल भी देख लेता था, प्रीवियस ईयर भी देख लेता था कि क्या क्या चीजें कॉमन है, क्या कहाँ कहाँ और ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। हाँ, इट इज ट्रू कि मतलब दोनों एक साथ नहीं चल पाता है। लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का IES मास्टर का जो कोर्स है, तो उसमें जो कोर्स सर्कल वाला है उसकी 50 क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इट इज क्वाइट लेंथी। सही बोला आपने। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डू यू फील अपीयरिंग फॉर द गेट इन 3rd ईयर इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स? हाँ, और बेनिफिशियल ये मतलब उस स्कोर का कोई यूज नहीं रहेगा, उस हिसाब से बेनिफिशियल नहीं रहेगा। बाकी बेनिफिशियल ये इस वजह से रहेगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि गेट का एग्जाम कैसा हो रहा है, या ये आइडिया लग जाएगा कि मुझे कितना एफर्ट डालना पड़ेगा आगे 4th ईयर में इम्प्रूव करने के लिए। मतलब चीजों का आइडिया लग जाएगा और एक अच्छी स्ट्रेटेजी हम अपने 4th ईयर के प्रिपरेशन में लगा सकते हैं। बाकी गेट का स्कोर 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है, नो डाउट, लेकिन ये वैलिडिटी सिर्फ हायर स्टडीज में एडमिशन के लिए रहती है। मैं जैसा बताया कि PSUs का बिल्कुल अलग क्राइटेरिया रहता है। हो सकता है PSUs गेट 2019 या गेट 2020 का स्कोर कार्ड मांग ले, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि करंट ईयर का ही गेट स्कोर कार्ड PSUs मांगती हैं। तो PSUs के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है 3rd ईयर में गेट देना। बाकी अगर हायर स्टडीज इंडिया में करना चाहते हैं तब हम दे सकते हैं 3rd ईयर में। बाकी 3rd ईयर में देने से आइडिया लग जाता है बेसिकली कि क्या सिलेबस है, क्या कहाँ पर ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ये सब चीजें आइडिया लग जाती है। तो 4th ईयर में थोड़ा सा जॉब इजी हो जाता है बस, और बाकी 3rd ईयर में देने का कोई एज सच कोई बेनिफिट नहीं। ओके भैया, सो अभी कुछ बुलेट क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट मतलब बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं। तो प्लीज मानसी, फर्स्ट क्वेश्चन। So Bhaiya, first question is why should one opt for GATE? Like we are already an IITM, so why there is a need that we should go for GATE? See, there are very less PSUs which hire from college. For example, when we see the current scenario, past year we had only GALE which recruited a student from our IIT, and that too from only mechanical engineering department. So keeping this in mind, we don't have a lot of PSUs that come to the college. And when you see the core placements in any of the IITs, not particularly in our IITs, the core companies don't offer you a handsome package as what your what is being offered in software profile or data analytics profile. So GATE examination helps you or opens a door for you to get into a PSU, which definitely offers a handsome salary, approximately 17 to 18 LPA, which is better than the software profile, because the job requirement, or you don't have to put in a lot of efforts here in PSUs as compared to what you have to put in software profile. And moreover, when it comes to you being in core, like you are interested in core a lot, so PSU ही एक ओनली ऑप्शन बचता है कि अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए और मतलब PSU इज समवट लाइक गवर्नमेंट जॉब काइंड ऑफ थिंग। सो और बाकी अगर एमटेक करना है तो आपका बीटेक का स्कोर तो आपको एमटेक करा नहीं देगा, गिवन डेट आप IDD के स्टूडेंट नहीं है। तो और बाकी अगर एमटेक करना है, आपको IIT बॉम्बे से करना है, तो गेट देना पड़ेगा। और बाकी किसी PSUs में जाना है और अगर PSUs कॉलेज से हायर नहीं कर रही हैं तो गेट देना पड़ेगा। So it does not matter whether you are IITian or not, to get into a PSU, you have to give GATE examination. Thank you so much for that. So Shiv? Okay, so one question. Mansi, तुम्हारा म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, ठीक। So the question is related to a current affair, since a lot of PSUs are being privatized. So why should I prepare for GATE if PSUs are slowly privatizing?
See, it's not about PSUs getting privatized. If they are getting privatized, they will still do some sort of work also. So if you have complete orientation toward government job, you are looking towards a PSU, so that you can be in a government sector, so you can better prepare for engineering services examination, wherein the syllabus of engineering services and GATE are somewhat similar. So और इतनी जल्दी भी PSUs प्राइवेटाइज आई गेस नहीं होंगी। अगर आप लोग थर्ड मतलब सेकेंड ईयर में हैं, तो मे बी 3 साल 3 ईयर 4 ईयर डाउन द लाइन आई डोंट सी दैट PSUs आर गेटिंग प्राइवेटाइज। कुछ PSUs जैसे CIL है, ONGC है, IOCL है, ये सब बड़ी PSUs हैं, इनको प्राइवेटाइज करना इतना भी आसान नहीं है। तो मे बी इन द लॉन्ग रन ये सब PSUs जो महारत्ना है, ये सब प्राइवेटाइज नहीं होंगी। ये कुछ PSU बैंक्स हैं जो प्राइवेटाइज हो रहे हैं, ना कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो ONGC, IOCL, ये सब इन सब के प्राइवेटाइज होने की अभी बात नहीं उठी है। Okay, भैया. So Mansi, if any question remaining, you prefer to ask? भैया, one of the questions that does preparing for GATE help for UPSC as well? UPSC conducts a lot of examination. So UPSC, ESC you are talking about, or civil services examination? Specifically engineering services. Specifically, yeah, engineering services. Yeah, it definitely helps. See, the basic thing is the fundamentals are common in both the examinations. ESC covers a vast portion of syllabus. कुछ चीजें ऐसी हैं जो गेट में नहीं है लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज यू कैन कंपेयर इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस विथ गेट एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, गेट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप अगर गेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपकी अच्छी हो जाएगी, और वो आपको ESC में भी हेल्प करेगा। तो ESC और गेट साइमल्टेनियस प्रिपरेशन किया जा सकता है बहुत आराम से। बस आपको लास्ट के लगभग 15 to 20 डेज आपको देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ गेट की टेस्ट सीरीज देंगे और बाकी दोनों की प्रिपरेशन साथ में होगी। मतलब प्रिपरेशन साथ में होगी, बस जो लास्ट मोमेंट जो होती है हमारी टेस्ट सीरीज वाली, वो अलग अलग हो जाती है। वो बस एक स्ट्रेटजी, जो एग्जाम देने की स्ट्रेटजी है वो दोनों की अलग अलग रहेगी, बिकॉज दोनों डाइवर्स नेचर के एग्जाम है। ESC में कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन का लेवल इजी रहता है लेकिन एरिया बहुत वास्ट रहती है। ESC में जो हाईएस्ट स्कोर होता है वो 60-70% के अप्रोक्सीमेटली रहता है, और गेट में जो हाईएस्ट स्कोर रहता है वो 92-93% के आसपास रहता है। तो गेट इज ऑल अबाउट यू हैव टू अटेंड लगभग ऑल द क्वेश्चंस, और वेयर एज इन ESC आपको सेलेक्टिव होके अटेम्प्ट देना है, और उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। ESC में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कभी आप देखे नहीं होंगे, लेकिन गेट में ऐसा नहीं है। गेट एप्टीट्यूड टेस्ट है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो एप्टीट्यूड का टेस्ट लेता है और आपका बेसिक फंडामेंटल इंजीनियरिंग का चेक करता है गेट, और बाकी ESC थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। अच्छा, थैंक यू भैया। One more question I would like, that which coaching should we refer to for like material or for online courses? That is a very needed question for like. So अनअकैडमी इस समय बहुत ज्यादा फेमस है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं ग्रेडअप का सब्सक्रिप्शन लिया था। ग्रेडअप जो अभी बायजूस एग्जाम प्रेप के नाम से फेमस है, उसको एक्वायर कर ली है बायजू, तो उसका मैं सब्सक्रिप्शन लिया था। बाकी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ उसको, उसके टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन अनअकैडमी पे फिर शेड्यूल आपको खुद से बनाना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसा देखा हूँ मैं कि टीचर्स अपना कोर्स बना करके, अपनी मॉड्यूल का कोर्स बना करके डाल दिए हैं, आपको टीचर को सर्च करना है और वो मॉड्यूल फिनिश करना है अपने अकॉर्डिंग। तो जिसको नहीं मालूम कि कौन सा टीचर अच्छा है कौन सा टीचर खराब है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी अनअकैडमी में। अनअकैडमी वाले भी कुछ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बैच भी चलाते हैं, वो कितना अच्छा है मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मेड इजी या IAS मास्टर के जो कोर्सेज रहते हैं उसमें फिर वो पूरा मतलब डेडिकेटेड होके आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो थोड़ा सा महंगे रहते हैं मेड इजी वगैरह के,
तो मेडिजी ज़्यादा सबसे अच्छा रहेगा, मेडिजी फर्स्ट प्रेफरेंस है। और बाकी अनअकैडमी नो डाउट अच्छा है, वहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं। मुझे मैसेज कोई कर सकता है अगर टीचर्स वगैरह के बारे में फीडबैक चाहिए तो बाकी वहाँ एक जसपाल सर करके हैं अनअकैडमी पे, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 2 से 3 डिवाइसेस पे शायद चल सकता है, तो 2-3 लोग मिल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी का और वहां से कर सकते हो। अनअकैडमी भी हो जाएगा, बस सेल्फ मोटिवेटेड रहना है और अपने आप चीजें कवर हो जाएंगी अनअकैडमी के भी सब्सक्रिप्शन से। जी, जसपाल सिंह भट्टी sir is quite famous for like ESE and Mansi. So we are moving to the questions from the audience, I guess. Yeah, most of the questions have been done. So now we will ask you people to come up with your questions. Anyone who want to ask any questions can unmute your mic and they can ask your questions. One more thing, I would like to remind all the people who are asking questions that try to ask only those questions which have not been touched yet, ताकि किसी का time waste ना हो. Okay, so please, most welcome. The first question here. ये इंटरव्यू के लिए अलग से क्या करना पड़ता है? जैसे टाटा के लिए आपने दिया था। नहीं, टाटा दरअसल ये कॉलेज प्लेसमेंट में आई थी, तो उसके लिए कुछ अलग से नहीं। अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मोर और लेस वही चीजें पूछते हैं वो लोग। और बाकी जो तुम्हारा सीवी रहे, सीवी तुम्हारा पूरा अच्छे से तैयार होना चाहिए, उसका हर एक पॉइंट जो भी सीवी में मेंशन किए हो वो सब चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। और बाकी अगर कोई भी प्रोजेक्ट मेंशन किए हो तो उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उसके सभी डिटेल्स पता होना चाहिए। अगर कोई भी टेक्निकलिटी कहीं से कुछ भी अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है तुमसे, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर देम। अगर तुम सीवी के क्वेश्चंस नहीं आंसर कर पा रहे हो देन दैट इज डेफिनेटली अ वेरी नेगेटिव पॉइंट एंड वो तुम्हारा सिलेक्शन रोक सकता है। तो सीवी एक बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। और सेकेंडली तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए, जिससे कि जो अपनी चीजें हैं प्रेजेंट करना चाह रहे हो वो चीजें तुम प्रेजेंट कर सको इंटरव्यूअर के सामने। और बाकी मॉक इंटरव्यू वगैरह देने से सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है। तो बेसिकली इंटरव्यू के लिए कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं करना पड़ता। बस ये है कि जो चीजें सीवी में लिख रहे हो उसकी एक बार प्रैक्टिस करनी होती है कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं उसका कैसे आंसर करूंगा। और कुछ बेसिक एचआर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये सब मतलब टिप पे होना चाहिए कि अगर कोई पूछे तो वो चीजें बता सकें, क्योंकि इंटरव्यूअर भी एक्सपेक्ट करता है तुमसे कि तुम ये चीजें प्रिपेयर करके आए होगे, तो तुमको ऐसे जवाब भी देना है कि लगे कि तुम प्रिपेयर करके आए हो। हाँ, बस इंटरव्यू प्रिपरेशन यही है, बस और कुछ नहीं। Anyone else? Any question? भैया आप अपना इंटर्न के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपने इंटर्न कैसे? इंटर्न देखो, मैं 2 जगह इंटर्न किया हूँ। एक मेरा नीति आयोग में इंटर्न था। नीति आयोग में ऐसा रहता है सीन, अभी क्या सीन है मुझे नहीं पता। उस टाइम पे ये था कि हर मंथ के फर्स्ट वीक में वो लोग निकालते हैं एप्लीकेशन। जिसको भी इंटर्न के लिए अप्लाई करना है वो इंटर्न के लिए अप्लाई कर सकता है। मेरे ख्याल से मैं नवंबर के फर्स्ट वीक में, या हाँ नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं अप्लाई किया था और दिसंबर में मैं इंटर्न किया था नीति आयोग में। और उसके अलावा इंटर्न मेरी थी बेक्टल में। बेक्टल भी कॉलेज से आई थी इंटर्नशिप के लिए। इट वाज द ओनली कंपनी दैट विजिटेड दैट ईयर फॉर कोर। तो एक वो थी बेक्टल, तो बेक्टल में यहाँ मतलब कॉलेज से हो गया था मेरा। भैया जैसे आपने क्या वर्क किया था, मतलब जैसे नीति आयोग और बेक्टेल में? मतलब बेक्टल में देखो, बेक्टल एक ईपीसी कंपनी है, तो उनका एक टास्क था, वो दिल्ली में एक वो बना रहे थे, रिफाइनरी टाइप में बना रहे थे। तो उसमें एक छोटा सा सेक्टर मुझे दे दिए थे। एक स्टैट सॉफ्टवेयर होता है दैट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। सो मुझे एक बेसिकली स्टील प्लेटफॉर्म डिजाइन करना था। उस पे जो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड जो लगना था वो मुझे मिल गया था कि ये लोड इस पे लगेगा, तो उसका एनालिसिस और डिजाइन मेरा पार्ट था। और वो बेसिकली मैं स्टैट सॉफ्टवेयर पहले नहीं यूज किया था, तो वहां मुझे स्क्रैच से पूरा बताया भी गया कि कैसे यूज करना है। जो भी मेरा मेंटर था वो पूरा गाइड किया। तो हाँ, यही मेरा काम था बेसिकली। एक स्टील प्लेटफॉर्म था, उस पे लोड लग रहा था, तो उसको मुझे डिजाइन करना था, एनालाइज करना था और डिजाइन करना था। और बाकी नीति आयोग में मेरा काम क्या था, नीति आयोग में
बेसिकली जो DPR वगैरह होते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते हैं, वो तैयार होते हैं। तो वो कैसे तैयार होते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल थी, ये सब देखा मैं। और नीति आयोग का काम होता है हर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आती है तो उसको देख करके कमेंट एंड नोटिंग देना। तो वहाँ के जो यंग प्रोफेशनल्स है वो बताए कि क्या क्या चीजें देखी जाती है नोटिंग वगैरह देते समय। और वहाँ पे मुझे एक्सपोजर मिला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या होते हैं, जिससे कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, जैसे PSU है, PSU को कुछ भी काम करना रहता है तो ये टेंडर निकालती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के भी कई सारे मॉडल्स होते हैं, तो वो मॉडल की मैं स्टडी किया नीति आयोग में। तो यही सब काम था बेसिकली नीति आयोग में और बेक्टल में। भैया कैन यू एक्सप्लेन द Okay, प्रोसेस, भैया। मतलब आप कैसे इंटर्न में सिलेक्ट हुए थे? किस इंटर्न में? नीति आयोग? वो दोनों में बता दोगे तो बेहतर ठीक रहेगा, है, शॉर्ट में बता ठीक दो। है। हाँ, तो नीति आयोग में ये था कि नीति आयोग में खाली एप्लीकेशन फिल किए थे, उसमें CGPA वगैरह सब मांगा था, कॉलेज वगैरह मांगा था। और वो डायरेक्ट एप्लीकेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करके कॉल किए थे। और उसके बाद कॉल आ गया था कि आप सिलेक्टेड हैं, अगर आप किस डेट से ज्वाइन करना चाहते हैं बता दीजिए, आपको ऑफर लेटर भेज देंगे। ये डायरेक्ट नीति आयोग का ये प्रोसेस था, खाली फॉर्म फिलअप करना था। और बाकी बेक्टल का ये प्रोसेस था कि वो कैंपस में आई थी, कोई टेस्ट वगैरह नहीं, सबकी CV जमा करवाई थी। CV के बाद CV शॉर्टलिस्टिंग हुई थी। CV शॉर्टलिस्टिंग के बाद जितने लोग की CV शॉर्टलिस्ट हुई थी उनका इंटरव्यू हुआ था। और इंटरव्यू के बाद फाइनल एक लिस्ट निकाले थे, ये लोग सेलेक्ट हुए हैं। ये कौन सी ईयर में? ये मेरा जो नीति आयोग वाला था, ये मेरा सेकेंड ईयर का विंटर था। हाँ, सेकेंड ईयर का विंटर था नीति आयोग। और जो बेक्टल वाला था, ये मेरा फोर्थ ईयर का समर था। Okay, so I guess the answer. और कोई और क्वेश्चन है, किसी को पूछना है, पूछ सकते हैं प्लीज। अगर Yeah, आप feel लोग free to ask इंटर्न, questions. हेलो, Hello, भैया। जी, हाँ, इंटर्न के लिए अप्लाई करना है तो कई सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी रहती है। जैसे जितना मुझे याद आ पा रहा है अभी मौके पे, एक IIT गांधीनगर का SRIP करके प्रोग्राम होता है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। IIT रुड़की का स्पार्क करके होता है, ये रिसर्च इंटर्नशिप कर सकते हो। अभी सेकंड थर्ड ईयर में फोकस करो कि रिसर्च, अगर IDT के हो तो सेकंड थर्ड ईयर में फोकस करो रिसर्च इंटर्नशिप का, अगर कोर में जाना है। और बाकी लास्ट ईयर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप कोई मिल जाए तो। एक मैं आर्टिकल रिसेंटली पढ़ा था, NHAI भी इंटर्नशिप के लिए हायर कर रही है बच्चों को, तो उसका भी देख लेना। अगर NHAI में इंटर्नशिप लग जाए तो काफी बढ़िया है। और बाकी लिंक्डइन वगैरह पे भी प्रोफाइल बना सकते हैं, वहाँ के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। ओके भैया। So any more questions? I guess that would be last question if asked or not. ये कोर के लिए कितनी कंपनी आई थी इस बार, या इससे कोविड की वजह से कम आई, या पहले ज्यादा नहीं, आती इस थी? बार नहीं, पहले देखो, कोर के लिए ज्यादातर कंपनियां आती हैं। वो आती है एक L&T जो हर बार का रहता है, वो आती है। उसका पैकेज बहुत कम रहता है, 7-8 LPA के आसपास रहता है। और बाकी एक टाटा प्रोजेक्ट आई थी इस बार, इसका पैकेज ठीक रहता है, 15.5 LPA रहता है। और इसके अलावा भी 2-3 कंपनियां आई हैं अभी रिसेंट में। मैं दरअसल पोर्टल चेक करना बंद कर दिया जब मेरा हो गया उसके बाद। लेकिन इस बार 5 से 6 कंपनियां स्पेसिफिकली सिविल कोर के लिए आई हैं। लेकिन जो पैकेज है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। अगर प्लेसमेंट लेना है तो अगर समय है तो सॉफ्टवेयर में स्विच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है। इस बार तो सीन ये हो गया था कि कंपनियां आ रही हैं लेकिन अप्लाई करने के लिए बच्चे ही नहीं बचे हैं। सॉफ्टवेयर प्रोफाइल का मैं बता रहा हूँ। तो अगर प्लेसमेंट लेना है तो सॉफ्टवेयर एक बेहतर ऑप्शन है। और बाकी अगर कंप्लीटली कोर में इंटरेस्टेड हो, कोर में अच्छा लग रहा है, तो ESC गेट एक ऑप्शन रहता है। बाकी प्लेसमेंट के लिए टाटा प्रोजेक्ट अगर आ गई तो वो बहुत बढ़िया कंपनी है, उसमें ले सकते हो। So Mansi, Yeah, I think we are done with the questions from the audience. Okay. Okay, so now we will move ahead to the ending of the session.
So firstly, thank you so much, Bhaiya, for making this session so wonderful. We thank you on behalf of the Student Counseling Service. We are really grateful for you to have on this session. So we would like to give you and with a e-memento from SCS. So let me present it to you. Wait a second. Okay. Yeah, go ahead. Is my screen visible? Yeah. Yeah, so Bhaiya, this is for you. Very thankful to you. Yeah, thank you. It's my pleasure basically to connect with the juniors due to this COVID situation. We were also wanted to interact with juniors, but you know, which is better, Medici or IS master. I guess this kind of question you can ask me on my personal WhatsApp number. I will share it here itself so that you all can connect if in case you want. Okay. Yes, please, Bhaiya. I was asking for it. Yeah, many students are asking for it. So yeah, Shiv, you can go up with the vote of thanks. Okay, so it gives me immense pleasure on the behalf of SCS to deliver a vote of thanks for the sessions, sir. Better to say Ayush Bhaiya. I would thank him for once. Please. Okay. I would like to thank him for his inspirational words and invaluable guidance. The session was highly knowledgeable, and I hope all the attendees benefited from the insights provided by you. It was an immense pleasure to have you. Thank you, Bhaiya or Sir, whatever you would like. I like to say, for joining us and giving us the valuable inputs. Thank you once again. Thank you. So actually the chat is disabled for me because I don't have Team installed on my desktop. So I will tell you the number. You can share it to the other members also. If they want, they can connect me in the near future. Or in the short, whoever was asking, I will say Medici is comparatively better than IS Master. Okay. Sure. So you can share my number. I don't have any problem with it. Or you can connect me on LinkedIn also. I'm an active member there. So yeah, I can answer your doubts anywhere on any platform, wherever you will ask. I will be happy to answer them. Okay. So much thank you. Okay. Thank you. Okay. Best of luck. So guys, we had floated a feedback form in the chat section. We would be loving for your feedback for the session. That any improvements, any modifications, what was your feedback about the session? Please do write in the feedback form. We would love to have them. So go to the chat box and fill that feedback form. Thank you. And once again, thank you so much, Bhaiya, for being with us. It has been wonderful pleasure for both me and Shiv to have an interview session with you. So thank you. So now we would be ending the session. Shiv, is it? Yeah, we will be. Okay. So Just Ayush Bhaiya, Mansi, please mute yourself. It's echoing. So Bhaiya, could you share your number like through your voice? मतलब बोल दीजिए मैं लिख Yeah. दूंगा. It's Share 860 860 101 101 29 29 14. 14. Okay. So much thank you, Bhaiya. Okay. Bye. bye, Bhaiya. So the session हो गया. So you people may leave too. And